Hi, this is Sarfahan, guys. Let's start paper one, multiple choice, chemistry 9701/12, February, March 2017. Duration of this paper is 1 hour. Okay, let's talk about question number one. Which ion has the same electronic configuration as chloride ion? Same electronic configuration, which means we need to find out the same number of electrons. So first of all, you should know that chloride has 18 electrons in total, because the atomic number of fluorine is 17, and because of this negative charge it has total 18 electrons. So we need to find out which option has 18 electrons. Atomic number of fluorine is 9. Because of negative charge it has 10 electrons. Obviously it's going to be incorrect. Phosphorus has an atomic number of 15. Because of +1 charge it has 14 electrons now. Obviously it's going to be incorrect. Silicon has an atomic number of 14, and obviously it has 4+ charge, which means it will get only 10 electrons. So obviously it's going to be incorrect. Now scandium has an atomic number of 21. All right, and because of this 3+ charge, it means 3 electrons are lost. So 21 minus 3 becomes what? 21 minus 3 becomes 18 electrons. I think so. 21 minus 3 is going to be 18. So C is going to be the right answer. Okay. Compound J and K each contain 40% carbon by mass. What could J and K be? Okay, so we have 4 different compounds here. The first one is hexose, then starch, then then this. So let's find out. Okay. So first of all, percentage by mass of carbon determine करना है in hexose. Okay, now we have 6 carbon atom in hexose. The 12 times 6 divided by the MR of hexose, and the MR of hexose is basically 180 into 100. So it's going to be 40%. So ये match कर गया 40% by mass of carbon. So this is right. Let's talk about starch. The percentage of carbon in a starch. We have 6 carbon in a starch. So 12 times 6 divided by the MR of starch, and the MR of starch is 162 into 100. So it's going to be 45%. So obviously it's going to be incorrect. Option A is incorrect. Percentage of carbon in pentose. Okay. So pentose has 5 carbon atom, as you can see in the formula. The 12 times 5, and the MR of pentose is 150 into 100. So it's going to be how much? 40%. So pentose is fine. Hexose is also fine, because दोनों में 40% है, which means B is going to be the right answer. Okay. Question number 3. 2 moles of P, and that's a very powerful statement. Initially we have 2 moles of P. Okay, was placed in a sealed container. The container was heated and P was partially decomposed to produce Q and R only. A dynamic equilibrium between PQ and N was established. At equilibrium, X moles of R were present. Okay, that's the most important thing. X moles of R were present, and the total moles present was this. So we need to find out this expression. जहां पर हमें ये expression मिलेगा वो हमारा correct answer होगा. Alright, so that's called trial and error method. तो बेसिकली हमें 1 by 1 सारे मेथड देखने हैं. ऑप्शन ए तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा गाइस, बिकॉज एग्जामिनर ने कहा हुआ है हमसे 2 मोल्स, राइट, और यहाँ 1 मोल है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग होगा. ऑप्शन ए को तो देखने की भी जरूरत नहीं है. ऑप्शन बी की बात करते हैं. ये हो जाएगा 2p रिवर्सिबल साइन 2q plus r
सो यहाँ से सबसे पहले इनिशियल मोल्स आ जाएंगे आपके पास 2, ये इनिशियली दोनों 0 होंगे। इक्विलिब्रियम मोल्स आपके पास कितने हो जाएंगे, आर जो है वो x है, तो जाहिर सी बात है ये 2:1 का रेशियो है, तो अगर ये x है इक्विलिब्रियम तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी 2x। सही है, इन दोनों के दरमियान मोलर रेशियो सेम है, तो मैंने कहा था जब मोलर रेशियो सेम होता है तो हम उसी को रिएक्टेड मोल्स लेंगे, तो 2x इज गोइंग टू बी द रिएक्टेड मोल्स। सो इनिशियली आपके पास 2 थे, उसमें से 2x रिएक्ट हो गए, तो बच कितने जाएंगे 2 - 2x। ओके, सो टोटल अमाउंट अगर मुझे यहाँ से डिटरमिन करना हो, या टोटल मोल्स मुझे यहाँ से डिटरमिन करने हो, तो ये हो जाएंगे 2 - 2x प्लस 2x प्लस x। ओके, तो प्लस 2x - 2x कैंसिल, तो इट्स गोइंग टू बी 2 + x। और मुझे क्या चाहिए, ये एक्सप्रेशन चाहिए, तो ये एक्सप्रेशन तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बी भी गलत है। लेट्स टॉक अबाउट सी। 2p रिवर्सिबल साइन q + r। इनिशियल अमाउंट मेरे पास कितना है 2, ये दोनों क्या होंगे 0। इक्विलिब्रियम मोल्स या इक्विलिब्रियम अमाउंट मेरे पास कितना है, r इज x, तो 1:1 की रेशियो की वजह से ये भी x। ओके, एंड ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान क्या है आपके पास, इन दोनों के दरमियान है आपके पास 2:1 का रेशियो है, राइट। तो अगर 2:1 का रेशियो है तो इसका मतलब ये हाफ होके मिलेगा आपको। तो इनिशियली अगर आपके पास 2 मोल्स थे और उसमें से हाफ मोल्स रिएक्ट हो गए, तो ये बच जाएंगे आपके पास, राइट। टोटल मोल्स यहाँ से देखो कितने आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 - ½ x प्लस x एंड देन प्लस x। ओके, तो इट्स गोइंग टू बी 2 + 3/2x। ओके, तो ये एक्सप्रेशन भी हमारा गलत हो गया, बिकॉज ये टैली नहीं हो रहा टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। तो ऑब्वियसली डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट्स द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। डी को भी देख लेते हैं कि कैसे डी है और क्यों डी है। सो ये हो जाएगा 2p रिवर्सिबल साइन q + 2r। ओके, इनिशियली मेरे पास कितने मोल्स हैं 2, ये दोनों 0। इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हैं मेरे पास, ये आपके पास x है। ओके, ये आपके पास क्या हो जाएगा x। तो जाहिर सी बात है इसमें 2:1 का रेशियो है, तो ये हाफ होकर मिलेगा 1/2x। ओके, इन दोनों का रेशियो सेम है, तो ये रिएक्टेड मोल्स हो जाएंगे। तो 2 इनिशियली 2 थे, उसमें से x रिएक्ट कर गए, तो बच कितने जाएंगे 2 - 2, 2 - x। तो मैं यहाँ से टोटल मोल्स अगर देखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से मिलेंगे 2 - x प्लस ½ x प्लस x। तो भाई कुछ इस तरह से हो गई है, ये -x और ये प्लस x कैंसिल, ये हो जाएगा 2 प्लस ½ x, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस x/2, और यही हमें एक्सप्रेशन चाहिए, राइट, which is why D is going to be the right answer. Okay, I hope it makes sense to you. Question number 4. The boiling point of methane, ethane, propane, and butane are given. Guys, all of them are alkanes. Okay, and as a percentage composition of carbon increases, number of electrons increases, molecular mass increases, van der Waals forces increases, volatility decreases, flammability decreases. All right, that's what we have done in the class. So let's see what we have in this. We have boiling point. मीथेन का कम है, इथेन का उससे ज्यादा, प्रोपेन का उससे ज्यादा, और ब्यूटेन का उससे भी ज्यादा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होंगी, और जब स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। सो क्वेश्चन इज व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन।
closer packing of molecule results in stronger van der Waals forces. Not at all. Closer packing का मतलब ये हुआ कि surface area कम है. Next, more covalent bonds are present. More covalent bonds has nothing to do with the boiling point. Actually, जब आप covalent bonds को break करते हो तो bond energy होती है, and bond energy has nothing to do with the boiling point. Okay, so it's going to be incorrect again. C, more electrons in the molecule results in stronger van der Waals forces. That's what I have explained you. That's what you have written in your notes. So obviously C is going to be the right answer. More hydrogen atoms in the molecule results in stronger hydrogen bonding. Hydrogen bonding exists in nitrogen, oxygen, and fluorine. All right, these three elements gives hydrogen bonding. So these are the hydrocarbons, and all hydrocarbons are non-polar. So non-polar exhibits instantaneous dipole-induced dipole forces, which means this statement is also incorrect. Now, question number 5. The characteristic smell of garlic is due to alleles. Okay, what are the approximate bond angles in a molecule of alene? Okay, तो सबसे पहले हम कार्बन, because ग्रुप 14 का एलिमेंट है तो it has 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डिटरमिन कर लेते हैं 4. It has no, because we have one double bond. One double bond को single bond में consider कर लेते हैं according to the shortcut. So we have 3 single bond and a 0 lone pair. So it's going to be 3. 3 lines draw करोगे. सबसे पहली वाली line s orbital की होती है, बाकी दोनों line है p orbital की. So hybridization is sp2. That's the shortcut technique, guys. And whenever you have 3 single bond and a 0 lone pair with sp2 hybridization, angle is going to be 120. So 120 is x. So our answer या तो b है या फिर c है. Okay. That's again y को देखो. कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ग्रुप 14 का एलिमेंट है. 1 डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब 3 सिंगल बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर. अगेन हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 sp2 होगी, एंड एंगल इज गोइंग टू बी अगेन 120 डिग्री. तो 120 यहाँ पर है. ओके, आई थिंक सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बट लास्ट वाला भी देख लेते हैं. इस कार्बन की भी वैलेंस शेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा. Obviously 4 सिंगल बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो टोटल इज गोइंग टू बी 4. 4 लाइंस ड्रॉ करोगे. सबसे पहली वाली लाइन है s ऑर्बिटल की, बाकी तीनों लाइन है p ऑर्बिटल की. तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 109.5 डिग्री. whenever you have 4 single bond 0 lone pair with sp3 hybridization, तो 109.5 यहाँ पर है, and obviously c is going to be the right answer. Okay, which gas sample contains the fused molecule? fused का मतलब होता है smaller number, a less number. Smaller number of molecules. तो इसका मतलब ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगा कि मैं एक एक की कन्वर्जन भी करूं, प्रेशर की भी कन्वर्जन करूं, टेम्परेचर की भी करूं, वॉल्यूम की भी करूं, आर की वैल्यू भी लगाऊं, कार्बन डाइऑक्साइड भी देखूं, और फिर मॉलिक्यूल्स डिटरमिन करूं. तो व्हाट यू कैन डू इज, मुझे ये पता है कि मैं PV इक्वल्स टू nRT अप्लाई करना चाहता हूं, और मुझे ये पता है कि एग्जामिनर मुझसे फ्यूज्ड मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे हैं. लीजिएगा n इक्वल्स टू PV अपॉन RT, और मैं ये भी जानता हूं कि R इज बेसिकली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये दोनों, तो अगर मैं R को हटाता हूं तो साइन ऑफ इक्वलिटी हटेगा. साइन ऑफ इक्वलिटी की जगह साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा. जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा तो मेरे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा PV अपॉन T. अब ये एक्सप्रेशन ऐसा है जिसके अंदर मैं कन्वर्जन नहीं करूंगा, वैल्यूज डायरेक्टली प्लग इन करके डिटरमाइन कर लूंगा n की वैल्यू. ठीक है ना. बस ये ध्यान में रखना कि टेम्परेचर जो है वो 273 ऐड होगा डिग्री सेल्सियस में. सही है. ऑलराइट, बाकी तो कोई इशू नहीं है. बाकी क्लोपैस्कल को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, पैस्कल को भी क्लोपैस्कल को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम को भी जरूरत नहीं है. ओके, सिर्फ टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज करना है हमने. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. हम सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं. n is directly proportional to p. p मेरे पास है 2.0,
V मेरे पास है 1 dm³ डिवाइडेड बाय टेम्परेचर मेरे पास है 27, उसमें 273 ऐड कर दो, तो मेरे पास यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो है 6.67 इंटू 10⁻³ ओके, ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बी। n is directly proportional to 2.0 into 1 divided by 100 plus 273. So it's going to be 5.36 into 10⁻³ Let's talk about option C. That's a technical question. C में 4 है मेरे पास, into 1 divided by 300 plus 273. So it's going to be 6.98 into 10⁻³ Okay. Last but not the least, option D. Pressure है आपके पास 3.0, volume 1.00 divided by 250 plus 273. So it's going to be how much? 5.74 into 10⁻³ Okay. So least value सबसे ज्यादा कौन सी है? Least value I think so हमारे पास B है, which means B is going to be the right answer. Okay. Question number 7. A student makes 25 cm³ of 4 mole per dm³ HCl. That means कि मैं इन दोनों को यूज करके मोल्स ऑफ HCl कैलकुलेट कर सकता हूं। मेरा फर्स्ट स्टेप है मोल्स ऑफ HCl, कंसंट्रेशन है 4.00, वॉल्यूम है 25.0 divided by 1000, so you will get the moles. So 4 into 25 divided by 1000, 0.1 mole. Okay, with an equal volume of 4 mole per dm³ sodium hydroxide. And when we say equal volume, इसका मतलब हम यहाँ पर भी 25 cm³ यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोल्स आपके पास HCl के हैं, एग्जैक्टली वही मोल्स आपके पास NaOH के भी होंगे, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन वॉल्यूम सेम है, राइट। मैं फिर भी यहाँ निकाल के दे देता हूँ आपको मोल्स ऑफ NaOH, क्योंकि सेम वॉल्यूम है तो हम 25 रखेंगे। कंसंट्रेशन एग्जाम में सेम रखी हुई है 4.00, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.1 मोल। ऑलराइट, the initial temperature of both solution was 15 degrees Celsius. The maximum temperature recorded was 30 degrees Celsius. तो अगर मुझे टेम्परेचर चेंज यहाँ से निकालना हो डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा 30.0 minus 15.0, so it's going to be 15.0 डिग्री सेल्सियस। और आप जानते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट नहीं होता, बिकॉज 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 1 केल्विन अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर। ओके, using these results, what is the enthalpy change of neutralization of hydrochloric acid? Enthalpy change of neutralization calculate करना चाहते हैं, so enthalpy change always use for 1 mole. Okay, एक और भी चीज है, वो ये कि volume of solution is basically the mass of solution. आप जानते हैं कि आपने 25 cm³ NaOH यूज किया था, 25 cm³ HCl यूज किया था, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 50 cm³ which is equals to 50 gram, because 1 gram is equals to 1 cm³ practically. Okay, now we need to apply first of all delta Q
इक्वल्स टू mc डेल्टा टी, मास जो है वो 50, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेटा बुकलेट के अंदर गिवन होता है, आई मीन एट द एंड ऑफ पेपर 4.18, टेम्परेचर चेंज आपके पास 15 है, तो यहाँ से डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 50 into 4.18 into 15 is going to be 3135 joules. Now convert it into kilojoules. So divided by 1000 is going to be 3.135 kilojoules. Okay. My second step is 0.1 mole of HCl gives you 3.135 kilojoules energy. 1 mole में कितनी एनर्जी होगी, तो डिवाइड बाय 0.1 is going to be 31.35 kilojoules per mole. And you guys know कि neutralization is always exothermic, which is why sign should be negative. So delta H की वैल्यू आ जाएगी -31.35, which is actually round off होकर कितनी हो जाएगी, -31.4 kilojoules per mole. So right answer is going to be B. Okay. Next question, question number 8. HOCl is the molecule that kills bacteria when chlorine is added to water, because HOCl oxidizing agent होता है. Okay. The following reaction produce this molecule. Okay. Which statement about this reaction is correct? Chlorine is both oxidized and reduced. Over here, the oxidation state of chlorine is 0. Over here, the oxidation state of chlorine is +1. And over here, the oxidation state of chlorine is -1. So chlorine simultaneously oxidized bhi ho raha hai, chlorine simultaneously reduced bhi ho raha hai, which is why this statement is correct, and therefore A is going to be the right answer. Okay. Next, all the reactants and products of an exothermic reaction are gaseous. If the reactants and products are gaseous, that means we need to follow the bond energy concept. तो बॉन्ड एनर्जी में ये होता है ना, सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में. Follow the bond energy concept. Okay. And since examiner is talking about an exothermic reaction, which means energy of product okay, exothermic reaction में क्या था, अगर मैं आपको याद करवाऊं ओ लेवल केमिस्ट्री, तो उसमें हमने ये कहा था आपको कि एनर्जी रिलीज्ड in bond making should be greater than energy absorbed in bond breaking. Okay, that is the whole scenario. So let's talk about this statement one by one. Total bond energy of the product is less. So bond making का मतलब product greater है, इसका मतलब ये statement गलत हो गया, right? This statement is wrong, which is why option A is wrong. फिर वो कह रहे हैं the total bond energy of the product is less. नहीं, जब प्रोडक्ट बनती है तो इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज ग्रेटर, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत है. द टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर, ये बात बिल्कुल सही है, एंड द टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बिल्कुल सही बात है, दैट्स करेक्ट. एंड डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, एक्सोथर्मिक हमेशा डेल्टा एच नेगेटिव होता है, तो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. लेट्स टॉक अबाउट डी.
total bond energy of the product is more than the total bond energy of the reactant. ये बात सही है कि प्रोडक्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और ये फॉलो हो जाता है स्टेटमेंट इस पे. And delta H for the reaction is positive. That is wrong because exothermic reaction में delta H हमेशा negative होता है. So obviously D is also incorrect. Question number 10. Oxidation of ethane dioetines by acidified potassium manganate 7 is very slow at room temperature. Mn2 plus ion catalyzes this reaction. By the way, this is called autocatalyst. We have done that in chemical kinetics chapter. When one of the product catalyzes the reaction, then such reactions are called autocatalysts. Okay. Which graph shows how the concentration of acidified manganate 7 ions varies after ethane dioetines are added? Obviously, आप जानते हैं with time concentration of reactant, that is MnO4 negative, decreases. That means this statement is incorrect. That means this statement is also incorrect. Okay. This statement is also incorrect. Okay. क्योंकि concentration बढ़ती नहीं है, concentration कम होती है. अब concentration यहाँ पर भी कम दिखा रहे हैं और concentration यहाँ पर भी कम दिखा रहे हैं. But एक चीज याद रखिएगा कि ये बहुत ही least steeper है. Sorry, more steeper curve है. More steeper curve. तो इसका मतलब इस सिचुएशन में हाई रेट होगा. Whereas एग्जामिनर ये कह रहे हैं is very slow at room temperature. तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो वो तो बहुत ही कम स्लो टेम्परेचर स्लो रिएक्शन होगा, तो ये मोर स्टीपर तो नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली बी. व्हाई बी इज करेक्ट? बिकॉज आप नोट करें, अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट मुझे कह रहा है कि स्लो रेट है, तो इनिशियली स्लो रेट होता है. ठीक है. उसके बाद आप नोट करें इस टेंजेंट को, ये टेंजेंट जो है वो शो कर रहा है कि फास्टर है, स्टीपर है कर्व. सही. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप इसको देखिए. ओके. और ये शो कर रहा है कि रिएक्टेंट्स यूज्ड अप. क्यों भाई, क्यों यूज्ड अप होंगे? क्योंकि रिएक्शन है रिवर्सिबल है, ये कंप्लीटली इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रेट कम हो जाएगा. सही है. I hope it makes sense to you, and that's what we have done in the class even. Okay. Next. Oops. Question 11. Okay. Ammonia is manufactured from nitrogen and hydrogen using the Haber's process. What is the expression for Kc for this equilibrium? तो अगर मुझे Kc का expression लिखना हो for Haber's process, तो ये हो जाएगा concentration of product, और product में आपके पास है ammonia. Since it has 2 mole, तो उसके moles power में चले जाएंगे, over concentration of nitrogen times concentration of hydrogen, और क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं इसलिए वो पावर में चले जाएंगे. अब ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अमोनिया वाला यहाँ लिखा हुआ है, नाइट्रोजन वाला यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. ये तो गलत. वेट, दिस इज रॉन्ग क्योंकि ये पावर में जाना चाहिए था, उन्होंने कोफिशिएंट लगा दिया. सही है. तो कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड सी. तो सी के अंदर ये दोनों एक्सप्रेशन ठीक है, डी में भी ये दोनों एक्सप्रेशन ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है. बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर प्लस कर दिया है, which is why it is incorrect, and therefore D is going to be the right answer. Okay. Question number 12. The electrical conductivities of 2 compounds Y and Z are shown in the table. Conductivity of the compound in the liquid state good does not conduct.
यानी मोल्टन फॉर्म में दे कैन कंडक्ट। अगर मोल्टन फॉर्म में कंडक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आइदर इट इज मेटल, इट शुडंट बी मेटल क्योंकि कंपाउंड कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इट मस्ट बी एन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten state. Next is conductivity of the mixture obtained by adding the compound to water. Good. यानी water के अंदर electricity conduct करता है, ठीक है। अच्छा guys, ऑप्शन SiCl4 को जब तुम water में प्लेस करोगे, ये हमने पढ़ा है ना आपको, तो ऑब्वियसली वो कन्वर्ट होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड में और 4HCl में, और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, सही है, एक्वस मीडियम में। ऑलराइट, तो Z जो है वो लिक्विड स्टेट में तो कंडक्ट नहीं करेगा, नो फ्री मोबाइल आयंस और इलेक्ट्रॉन, बट Z जो है वो कर लेगा वाटर के साथ, ठीक है। Z कर लेगा, और Y एक्चुअली Al2O3 इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, सो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये गलत, ऑब्वियसली ये भी गलत, ये गलत क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। ओके, दैट्स ओनली ऑप्शन लेफ्ट। सोडियम फ्लोराइड is an ionic compound in molten and in aqueous state. It conducts electricity. Okay, और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है वो इस HCl की फॉर्मेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। तो Y जो है वो लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, Z नहीं करेगा क्योंकि इसके पास फ्री मोबाइल आयंस नहीं होंगे। So that's the only option left. Okay. Question number 13. Which reagent, when mixed with ammonium sulfate and then heated, liberates ammonium? I've told you a couple of times, when any ammonium salt react with any alkali, then always ammonia gas is given off. So right answer is going to be C. Why does barium react more rapidly with cold water than magnesium? Because barium की reactivity ज़्यादा है as compared to magnesium. So barium atom are larger. Barium atom are larger and form ions more easily than magnesium atom. That's correct. Down the group atomic size increase होता है. Atomic size increase होने की वजह से nucleus to valence electron attraction कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल easier होता है। जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल easier होगा तो आयंस की फॉर्मेशन easy होगी। जब आयंस की फॉर्मेशन easy होगी तो जाहिर सी बात है रिएक्शन takes place most rapidly. So that's my answer. Let's talk about B. Barium floats on the surface of water. Not at all. ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो वाटर में सिंक होते हैं, और सिंक होने के बाद फिर वो रिएक्शन करते हैं। ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं वो एक्चुअली फ्लोट करते हैं वाटर की सरफेस पे। Barium hydroxide is less soluble. That's absolutely incorrect because barium hydroxide is highly soluble, because down the group solubility of group 2 hydroxides increases. The sum of first and second ionization energy of barium is more than that of magnesium. Down the group ionization energy decreases. So first or second ionization energy of barium should be smaller than the magnesium. The first and second ionization energy ka sum. Okay. So I think right answer is going to be an A. That's a very straightforward. If you know your content properly, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। लेकिन डेटा बुकलेट में एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम भी है, फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरियम भी है, दोनों को सम कर लीजिए। सम यकीनन बेरियम का कम आएगा क्योंकि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, the magnitude of property X of 5 elements from the third period of the periodic table is shown. These elements have consecutive atomic number. The letters do not represent the symbol of the element. Okay. Which row correctly identifies property X and element R? Okay. अच्छा, अगर आपको याद हो, ये प्रॉपर्टी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है क्लास में, और मैंने कुछ इस तरह से बना के दिया हुआ था आपको। ये स्केच, मैं स्केच रिपीट करता हूँ। होपफुली 5 एलिमेंट्स है ना। ओके, ये हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। इसका एटॉमिक नंबर 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। तो कंसेक्यूटिव एलिमेंट हो गए और कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर से अरेंज हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट लूँ तो मैंने आपको स्केच कुछ इस तरह का करवाया था कि सोडियम का कम होता है, मैग्नीशियम का उससे ज्यादा होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम का ऑलमोस्ट मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का सेम होता है, ऑलमोस्ट। सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट, बिकॉज सिलिकॉन का जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। और फास्फोरस क्योंकि P4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वैन वाल फोर्सेस होती हैं, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। दैट इज द स्केच। सो लेट्स ड्रॉ दिस स्केच। ये स्केच क्या कह रहा है हमें? सही है। तो जो एग्जामिनर ने मुझे स्टेटमेंट दिया है, ग्राफ दिया, वो एग्जैक्टली उसी ग्राफ से मैच कर रहा है जो मैंने बनाया है। ऑलराइट, तो ये आपका सोडियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये फास्फोरस हो गया, सेम शेप है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी द प्रॉपर्टी एक्स। इसका मतलब ए और बी गलत। और जाहिर सी बात है एलिमेंट आर पूछ रहे हैं, तो अगर ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, तो ये एल्यूमिनियम होगा। तो एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज ऑब्वियसली सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16. Some uses of chlorine and bromine are given. What is the use of bromine? Okay, first use is bromine making bleaches for textile. ओहो, bleach के लिए तो बेटा आप क्लोरीन यूज करते हैं, ब्रोमीन यूज नहीं करते। ओके, तो इसलिए ऑप्शन गलत। नेक्स्ट इज मेकिंग CFCs, दैट्स क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। इसमें क्लोरीन फ्लोरीन दोनों हैं, ब्रोमीन नहीं है, तो ये भी गलत। उसके बाद है मेकिंग द पॉलीमर PVC. PVC is basically polyvinyl chloride. तो अगेन यहाँ पर ब्रोमीन नहीं है, तो ये भी गलत। राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। याद है ये स्ट्रक्चर था आपके पास जो हमने आपको करवाया। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली इस स्ट्रक्चर में ब्रोमीन तो कहीं पर भी नहीं है, राइट? And the next question, in an experiment, 0.60 moles of chlorine gas. That's very powerful statement. If we have moles of chlorine with an excess of hot aqueous sodium hydroxide, one of the product is this. What mass of NaClO3 is formed? Well, first of all, we need to make the equation, and it is a hot concentrated NaOH reaction with chlorine. All right. So let's make the equation first. This is hot concentrated NaOH reacting with chlorine, converting into sodium chloride, sodium chlorate 5, which is NaClO3, and water. Now, according to the equation, we have 3 moles, and according to the equation, we have 1 mole. अगर क्लोरीन के 0.600 moles है, तो what about the moles of sodium chlorate 5? Moles of sodium chlorate 5 is divided by 0.6 divided by 3. Oh, 0.6 divided by 3 is going to be 0.2 moles. Okay, we need to find out the mass. Okay, and for that we need the MR of sodium chlorate 5. So MR of
सोडियम क्लोरेट 5, आपको पीरियोडिक टेबल देख के खुद से डिटरमिन करना है, और इसका जो MR है वो होगा 23 plus 35.5 plus 16 times 3 is going to be 106.5. Okay, so now I can find the mass of NaClO3. ये हो जाएगा 106.5 मल्टीप्लाई बाय मोल्स, एंड मोल्स है आपके पास 0.2, इसको मल्टीप्लाई करो 0.2 से, इट्स गोइंग टू बी 21.3 ग्राम, and that's our answer, and therefore A is going to be the right answer. Okay, next question number 18. Z is an anhydrous compound of group 2 element. Okay, anhydrous तो आपको पता है ना, without water को कहते हैं. Okay, next, when it is heated, Z undergoes thermal decomposition to produce two different gases. If you are getting two different gases, तो two different gases तो भाई आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होती है, and both these gases are obtained through decomposition of group 2 metal nitrates. सही है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस प्रोड्यूस होती है वो डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट के थ्रू होती है. तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, बिकॉज जब इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो ये बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जब इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी 1 मोल ऑफ गैस है, यहाँ पर भी 1 मोल ऑफ गैस है, जबकि वो यहाँ कह रहा है कि 2 डिफरेंट गैसेस हैं, व्हिच इज व्हाई ए एंड सी आर इनकरेक्ट. अब जब बेरियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करोगे तो इट विल टर्न टू बेरियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. ओके, मैग्नीशियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करोगे तो इट विल टर्न टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. अब मसला ये है कि इसमें भी मुझे 2 डिफरेंट गैसेस मिल रही हैं, इसमें भी मुझे 2 डिफरेंट गैसेस मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या तो आंसर बी है या डी. मजीद क्वेश्चन रीड करते हैं. वो कह रहे हैं Z has a relatively low thermal stability compared to other group 2 compounds containing the same anion as Z. तो अगर उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी कम है तो लेस टेम्परेचर इज नीडेड फॉर डिकम्पोजिशन, लेस टेम्परेचर is needed for decomposition, और less temperature उस वक्त required होता है decomposition के लिए when we have high charge density, और high charge density उस वक्त ज्यादा होती है जब size of the ion larger हो, size of the ion is smaller हो, and charge of the ion larger हो या bigger हो. Obviously that reflects D is going to be the right answer because magnesium की charge density barium से ज़्यादा हो. Okay. Question number 19. Methylamine has a very similar chemical properties of ammonia. Methylamine reacts with its hydrogen chloride to form a white crystalline salt, methylammonium chloride. A sample of methylammonium chloride is heated with aqueous sodium hydroxide. तो ये आपका methylammonium chloride है, इसको लेते हैं यहाँ पर और इसको हीट कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से. आई बिलीव कि यहाँ से क्लोराइड और यहाँ से सोडियम दोनों मिलकर बना लेंगे NaCl प्लस. आप जानते हैं कि यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर प्लस. सबसे पहला क्वेश्चन, इसने हाइड्रोजन क्यों दिया? क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड आर प्रोटॉन डोनर्स, तो इसने प्रोटॉन डोनेट किया, उस प्रोटॉन ने OH माइनस से रिएक्शन किया, वाटर में कन्वर्ट हो गया. व्हाट्स लेफ्ट नाउ? CH3, उसको एज इट इज लिखो.
प्रोटॉन के चले जाने के बाद यहाँ क्या बचेगा, NH2, उसको एज इट इज रखो। तो ये सॉल्ट हो गया तुम्हारा, ये वाटर हो गया तुम्हारा, और ये मिथाइल एमाइन हो गया तुम्हारा। एंड ऑब्वियसली यू गाइस नीड टू चेक कि ये तीनों किस ऑप्शन के अंदर हैं। तो ये मुझे तीनों ऑप्शन डी में मिल रहे हैं, which is why D is going to be the right answer. Okay. Question number 20. Structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. Tricky part आ गया, जहां दोनों एक साथ चेक किए जाएंगे वहां वर्किंग ठीक ठाक होगी। लेट्स सी क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। How many isomers with the formula C4H8 that have a structure that contain pi bond? Okay. Much relief. Pi bond मेंटेन करना है। पाई बॉन्ड मेंटेन करने का मतलब ये है कि बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो आइसोमर सारे वो बनेंगे जिसमें बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होगा। तो C4H8 इज बेसिकली एन एल्कीन, बिकॉज ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, राइट। लेट्स टॉक अबाउट आइसोमर्स। चलो पहला बनाते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसका ये फर्स्ट आइसोमर हो गया। इसका एक चेन आइसोमर भी हो सकता है, और वो चेन आइसोमर ये होगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका थर्ड आइसोमर होगा पोजीशन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ओके, और इसका फोर्थ आइसोमर होगा cyclobutane. That's what we have done in the class, remember? So मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि ये फंक्शनल आइसोमर हो गया, इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है। ओके, अब मसला ये है कि मुझे स्ट्रक्चर तो मैंने देख लिया पूरा, यानी मैंने ये चेन बना दिया, इसके थ्रू पोजीशन आ गया, इसके थ्रू फंक्शनल आ गया, फंक्शनल कैंसिल कर दिया। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ दो हाइड्रोजन है तो यहाँ ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता। यहाँ भी दो सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता। यहाँ ऑप्टिकल नहीं है, यहाँ ऑप्टिकल नहीं है, यहाँ ऑप्टिकल नहीं है, लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिकल है। दिस विल गिव यू सिस एंड ट्रांस। सो बेसिकली आपके पास एक आइसोमर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 आइसोमर्स हो गए। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। ओके, आई होप यू गेट द लॉजिक। और ये मैंने क्लास में करवाया है कि सिस ब्यूटूइन बनता है, ट्रांस ब्यूटूइन बनता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। Kerosene is used as an aircraft fuel. Q is one of the molecule in kerosene and has the skeletal formula shown. Other structural isomers of this molecule are found in kerosene. Which structure is a structural isomer of Q? यार guys, आप सब जानते हैं कि structural isomer के लिए जरूरी है कि molecular formula same हो लेकिन structure different हो। Molecular formula same, structure is different. सही, चलो देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है और ये ब्रांचेस हैं। ये सारी की सारी क्या होगी, ब्रांचेस। टोटल 7 कार्बन एटम्स हैं। काम करो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 कार्बन एटम है, इसका मतलब ये गलत हो गया क्योंकि हमें तो 7 चाहिए। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, अच्छा टोटल भी वैसे कर सकते हैं हम। एक मिनट रुको, टोटल करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So we have here 10 carbon atoms, right? यहाँ चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 कार्बन एटम्स हैं, बट मसला ये है कि जो नाम इस कंपाउंड का आएगा वो नाम इस कंपाउंड का नहीं होगा। ओके, ब्रांचेस की पोजीशन है, यहाँ 3 अल्काइल मिथाइल ब्रांचेस हैं, यहाँ पर 2 मिथाइल ब्रांचेस हैं। ओके, सो बेसिक चेन से ही मैंने डिटरमिन कर लिया कि ये नहीं हो सकता।
आई मीन मेरी टेक्निक ज्यादा बेहतर है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 है इसलिए गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 है इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑलराइट, यहाँ चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 कार्बन एटम्स हैं। इसको काम करो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी। तो कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन सी एंड डी। लेकिन तुम नोट करो, मैं तुम्हें शेयर करके दिखाता हूँ एक एक चीज। ये CH3CH2 है, ये रहा CH3CH2, उसके बाद ये CH है, ये आ गया CH। सही है। उसके बाद ये आ गया आपके पास प्रोपाइल ग्रुप, ये आ गया मिथाइल ग्रुप। फिर ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH है, ये CH है, ये CH3 है, ये CH3 है। उसके बाद ये CH है, यहाँ CH2 है, और उसके बाद यहाँ 2 CH3 है, तो यहाँ एक CH3 है। तो इसका मतलब इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है बिल्कुल, और नंबर पोजीशंस जो है ना वो डिफरेंट है। आई एम कंफ्यूज्ड इन सी एंड डी। लेट मी चेक वन मोर थिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन एटम्स है। सो इट हैज 11 कार्बन एटम। ऑब्वियसली ये भी गलत होगा। चलो, राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। सही है। तो इसमें टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं हमारे पास? 10। यहाँ कार्बन एटम्स कितने हैं हमारे पास? 11। यहाँ कार्बन एटम्स कितने हैं मेरे पास? 9। ठीक है। और ये क्यों गलत था? ये गलत मैं बताता हूँ क्यों था। मैं अगर केयरफुली देखूं, जरा देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों गलत है, क्यों मैंने किया। एक तो कार्बन एटम कम थे चेन में, लेकिन मैं एक और तरीके से बता देता हूँ। ये CH3CH2 है, ये आया CH3CH2। ये CH है, ये आया CH। ये CH3 है, ये आया CH3। ये CH2 है, ये आया CH2। ये CH है, ये आया CH। ये CH3 है, ये रहा CH3। और इस CH3 के साथ ये प्रोपाइल ग्रुप है। एग्जामिनर ने उस प्रोपाइल ग्रुप को यहाँ लिख दिया। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, इसलिए ये भी गलत। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। सी और बी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से गलत हो गए। ए इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, व्हिच इज व्हाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। दैट्स अ ट्रिकी पार्ट, बट मजे का क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बहुत। Which radical is most likely to form by the homolytic fission of one covalent bond in bromochloromethane? तो सबसे वीक बॉन्ड होता है इन सब में से, वो है कार्बन क्लोरीन। और जब कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके पास अगर CH2BrCl है और होमोलाइटिक फिजन हो रही है, याद रखिएगा होमोलाइटिक फिजन कह रहे हैं एग्जामिनर। सही है। तो जब होमोलाइटिक फिजन होगी तो क्लोरीन रेडिकल बनेगा और कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। नो 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 नो, वीक बॉन्ड चेक करना है मैंने, वीक बॉन्ड चेक करना है। आई नीड टू फाइंड आउट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ईच बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी होती है डेटा बुकलेट में 410। कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी होती है डेटा बुकलेट के अंदर 360। कार्बन ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी होती है डेटा बुकलेट के अंदर 290। इसका मतलब जो वीकेस्ट बॉन्ड है वो कार्बन ब्रोमीन का है। तो अगर वीकेस्ट बॉन्ड कार्बन ब्रोमीन का है तो इसका मतलब सबसे पहले कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा। और अगर कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास CH2Cl रेडिकल बनेगा और यहाँ से ब्रोमीन रेडिकल होगा। सबसे वीकेस्ट बॉन्ड टूटता है। तो ऑब्वियसली यू नीड टू चेक कि ये ऑप्शन कहाँ पर है, एंड देयरफॉर A is going to be the right answer. Okay. Okay, next. Propene undergoes variety of reactions. Which row is correct? Propene. Propene जनाब हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम सबसे पहले इसको रिएक्शन करवा दें ब्रोमीन से, तो भाई ये बनेगा
CH3 CHBr, यानी डबल बॉन्डेड एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, राइट? ओके, जबकि उसने कहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो 1 ब्रोमो तो नहीं आएगा, 1,2 डाइब्रोमो आएगा, विच इज व्हाई ए इज इनकरेक्ट। उसके बाद वो कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अगर वो कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली डायोल्स बनेंगे, CH3 CH OH CH2 OH, तो ये हो जाएगा डायोल, राइट? जबकि वो कह रहा है प्रोपेनिक एसिड, विच इज रॉन्ग, ये भी गलत। उसके बाद वो कह रहे हैं HBr, तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। मार्कोनी को फुल फॉलो होगा, मेजर प्रोडक्ट भी बनेगी, माइनर प्रोडक्ट भी बनेगी। मैं मेजर प्रोडक्ट बना देता हूँ। मेजर प्रोडक्ट तो आपके पास ये होगी CHBr एंड देन CH2, राइट? तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये ठीक है और ये भी ठीक है। इसका मतलब C इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बट हम ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी के लिए हम यहां आ जाते हैं। ऑप्शन डी, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड KMnO4, तो भाई डबल बॉन्ड के साथ जो CH होता है वो COH में कन्वर्ट होता है, तो CH3 will remain as it is and CH will turn to C, ठीक है? Oh my goodness. क्वेश्चन 24 से रिलेटेड बात कर लेते हैं। Polymerization of ethene gives polyethene. How does the bonding between carbon atom in polyethene compare with that in ethene? Polyethene, polyethene basically, हाँ देखो, सबसे पहली तो बात करते हैं इथीन। इथीन में बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड होता है, ठीक है? और अब बात करते हैं पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन में बिटवीन द कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड होता है, और मैंने आपको क्लास में लिखा है कि सिंगल बॉन्ड लॉन्गर बॉन्ड होता है, वीकर होता है, तो लॉन्गर एंड वीकर यहां सही लिखा हुआ है, राइट? लॉन्गर होता है, वीकर होता है, राइट आंसर इज बी। हमने क्लास में भी करवाया, फिर रजिस्टर में लिखा हुआ है लॉन्गर बॉन्ड वीकर बॉन्ड, और मैंने क्लास में ये भी लिखवाया आपको कि ये डबल बॉन्ड है इसलिए शॉर्टर बॉन्ड होगा और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। ओके, 24, next is 25. Diols in which both hydroxy groups bonded to the same carbon atom can spontaneously eliminate a molecule of water to produce a carbonyl compound. That's a very, very powerful statement. Both hydroxy group bonded to the same carbon atom, which means अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई भी कंपाउंड, तो फिर एलिमिनेट हो जाएगा वाटर स्पॉन्टेनियसली, राइट? And as a result of that, carbonyl compound बनेगा. And that's a very, very important statement कि both hydroxy group needs to attach with the same carbon, so that elimination of water takes place spontaneously. तो सेम कार्बन एटम से ये भी अटैच नहीं है, सेम कार्बन एटम से ये भी अटैच नहीं है ना? अगर मैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन की जगह, ब्यूटेन की जगह मैं लिख दूं 1 2 3 4 1,2 डाइब्रोमो, अगर एक OH यहाँ लगा दूं, एक OH यहाँ लगा दूं, तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर यहाँ से नहीं हो सकेगा, सही है? क्योंकि एडजेसेंट कार्बन एटम पे लगे हैं, हमें एक ही कार्बन एटम के साथ लगाना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगा दूं, तो ये तो नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम से अटैच है, एक OH यहाँ आ जाएगा, एक OH यहाँ आ जाएगा, ये भी एलिमिनेशन ऑफ वाटर नहीं कर सकेगा, तो ये भी गलत। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि एक ही कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप लगे हुए होने चाहिए, तब एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा। तो इसका मतलब कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन A एंड D, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन के साथ दोनों ब्रोमीन लगे हुए हैं। लेट्स वर्किंग ऑन दैट। एब्सोल्युटली B एंड C इज इनकरेक्ट। मैं थोड़ा सा
1 2 3 4, ये भी ब्रोमीन है और ये भी ब्रोमीन। आपने इसको डायोल में कन्वर्ट किया, सही है, ये हो गया OH और ये भी हो गया OH। और जाहिर सी बात है जब यहां से वाटर एलिमिनेट होगा तो वाटर की एलिमिनेशन की वजह से दिस विल टर्न टू, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दिस विल टर्न टू एन एल्डिहाइड बिकॉज कॉर्नर कार्बन एटम के ऊपर एल्डिहाइड बनता है, अगर सेंटर में होता तो कीटोन बनता। ये मेरा ऑप्शन ए है। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। 1 2 3 4, 2 डाइब्रोमो, ये 2 और ये 2 डाइब्रोमो हो गया। इससे बना दो आप डायोल, तो आप इससे डायोल बनाओगे तो एक ही कार्बन एटम के साथ 2 OH लग जाएंगे, एक OH यहाँ पर आ गया, एक OH यहाँ पर आ गया, एंड ऑब्वियसली यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर। तो जब वाटर बनाएंगे तो यहाँ से जो तुम्हें मिलेगा कार्बोनाइल कंपाउंड वो बेसिकली कीटोन होगा क्योंकि सेंटर वाले कार्बन एटम के ऊपर है। तो दिस विल गिव यू एन एल्डिहाइड and this will give you a ketone. Okay, now let's read the question, remaining question. Which compound after complete hydrolysis gives positive test of tolerance reagent? Tolerance reagent हमेशा आपको प्रोवाइड करेगा एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड तो आपको A से मिल रहा है and therefore A is going to be the right answer। ये भी गलत हो जाएगा, सही है। I hope that makes sense to you। अब यहाँ लिख सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है आपका, यानी मुझे एल्डिहाइड चाहिए। ओके, Question 26. Propane 2-ol undergoes many reactions. Which row is correct? Okay, propane 2-ol. Propane 2-ol. This is secondary alcohol, guys. तो अगर मैं इस secondary alcohol को acidified KMnO4 से reaction करवाऊंगा तो ये secondary alcohol oxidize होकर convert हो जाएगा कीटोन में, जबकि वो मुझे aldehyde कह रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन A is incorrect। ओके, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रोपेन 2-ol क्लोरीन से रिएक्शन करने के लिए कह रहे हैं, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करता। अल्कोहल कैन नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन मॉलिक्यूल, हमने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करवाया बिकॉज होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, व्हिच मींस बी इज इनकरेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट सी, CH3 CH OH CH3। अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाऊंगा तो डिहाइड्रेशन होगा, एंड डिहाइड्रेशन की वजह से बनेगी प्रोपीन, इन जनरली स्पीकिंग इथीन एल्कीन। तो ये एल्कीन है, ये बिल्कुल सही हो रहा है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। लेकिन आप नेक्स्ट आखिरी भी पढ़ लीजिए, आखिरी भी देख लेते हैं। ये प्रोपीन है, ये प्रोपीन है CH3 CH OH और ये हो जाएगा CH3। ऑलराइट, अगर मैं इस कंपाउंड को मिथेनोइक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली एस्टर बनेगा, तो जब एस्टर बनेगा तो हम इस तरह से लिखेंगे HCOO, O के बाद आएगा CH और CH के बाद आएंगे 2 CH3। तो यहाँ तो 2 CH3 है ही नहीं, यहाँ तो अल्काइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप है ही नहीं, इसका मतलब ये गलत गलत स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके, ये भी गलत। ओके, नेक्स्ट, ethane 1,2-diol has the following structure. Without breaking CC bond, there are 5 possible oxidation products. Oh my goodness. Without breaking CC bond, 5 oxidation products. That means कि आपने जो भी वर्किंग करनी है इन दोनों के साथ करनी है। ओके, ये नहीं टूट सकता। वो कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन दीस 5 प्रोडक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स। ओके, अच्छा, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो, याद रखिएगा कि ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, तो मैं इस वाले प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता हूँ और दूसरा वाला जो प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH उसको एज इट इज रखता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए और ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए,
तो ये हो जाएगा COH और ये हो जाएगा COH। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दें और इसको कन्वर्ट ना करें, COH हुआ और ये CH2OH एज इट इज रहा। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएं। और फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, और फिफ्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया और इसको एल्डिहाइड में। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि एक एल्डिहाइड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया और इसको हमने एल्डिहाइड में। दीज आर द फाइव, और तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये बनाई कि दोनों एल्डिहाइड हो जाएंगे, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी बनाई एक एल्डिहाइड अल्कोहल हो, दूसरी पॉसिबिलिटी बनाई एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल हो, और आखिरी पॉसिबिलिटी है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक एल्डिहाइड दोनों हो। अब इसमें से चेक करते हैं कि हमारे पास एल्डिहाइड्स कितने हैं। दिस इज योर फर्स्ट एल्डिहाइड, सेकेंड एल्डिहाइड, थर्ड एल्डिहाइड, फोर्थ एल्डिहाइड। चार एल्डिहाइड है आपके पास। चार एल्डिहाइड यहाँ पर हैं, चार एल्डिहाइड यहाँ पर हैं, इसका मतलब ए और बी गलत। कार्बोक्सिलिक एसिड जज करो। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ रहे हैं ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वन ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा। तो चार कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए एंड देयरफॉर राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। ओके, क्वेश्चन 28। Pentanone reacts with hydrogen cyanide to form an organic product called cyanohydrin. Which statement is correct? Cyanohydrin product has one chiral center. ये गलत है, इसलिए ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, तो chiral नहीं आ सकती। ठीक है, which is why ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। The cyanohydrin product is formed by electrophilic addition. Again गलत, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू होता है। The cyanohydrin product is formed by an intermediate which contains COH group. ये बिल्कुल सही बात है। नहीं ग्रुप ओ नहीं, इंटरमीडिएट कह रहा है, तो इंटरमीडिएट तो ये बनेगा ना यार, इंटरमीडिएट तो नेगेटिवली चार्ज होता है, ये बना हुआ होगा O नेगेटिव, CH2 CH3 और CN, दैट इज गोइंग टू बी योर इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में आपका COH बॉन्ड नहीं है, प्रोडक्ट में होगा COH बॉन्ड, ये भी गलत। राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। The formation of cyanohydrin product requires the use of cyanidine as a catalyst. बिल्कुल सही बात है, जो sodium cyanide acts as a catalyst. Okay. So, compound X is heated under reflux with an excess of acidified potassium dichromate 6 to form compound Y. Both X and Y are separately warm with Fehling solution. And the observation noted. What are the observations? बेटा Fehling solution की एक ही ऑब्जर्वेशन होती है और वो ये होता है कि ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स आपको मिलते हैं ठीक है। तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स कहाँ पर हैं? ऑलमोस्ट सब में ही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबको तो हम मार्क नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको ऑक्सीडाइज करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 के साथ। तो ये हो जाएगा CH3, that is CHOH, then CHOH, then CHO, and then CH3. Okay. So अगर मैं इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ तो ऑब्वियसली इट विल टर्न टू कीटोन, बिकॉज ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट होगा। एंड दिस इज CH। ये जो CH3 है इसको उठाकर मैंने यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो CHO है ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा COH में। तो ये ऑक्सीडाइज होकर आपका Y आ गया और
ये आपका X है, ओके। तो अब आप नोट करो, इस X के अंदर एक एल्डिहाइड है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। इसमें कोई एल्डिहाइड नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब ओनली X gives red precipitate and therefore B is going to be the right answer, ओके। इस स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है। CH3 को मैंने यहाँ लिख दिया है और ये CHO ऑक्सीडाइज होकर यहाँ कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज से, ठीक है। Which two compounds can react together to produce an ester? भाई, एस्टर प्रोड्यूस करने के लिए अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड शुड रिएक्ट टुगेदर। अल्कोहल and carboxylic acid should react together। ये कीटोन है, रिएक्शन नहीं करेगा, एस्टर नहीं बनाएगा। ये एल्डिहाइड है, रिएक्शन नहीं करेगा, एस्टर नहीं बनाएगा। ये एल्डिहाइड है, रिएक्शन नहीं करेगा, एस्टर नहीं बनेगा, which means C is going to be the right answer। उसकी वजह ये है, इसकी सिंपल सी लॉजिक ये है कि ये आपका क्या है, अल्कोहल, और ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस इज योर अल्कोहल एंड दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एस्टर बना लेंगे, ओके। आई होप यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। Nitrogen and phosphorus are both in group 15 of the periodic table, which means both of them contain 5 electrons in their valence shell. Phosphorus forms a chloride with the formula PCl5, but nitrogen does not form NCl5. Which statement helps to explain this? पहली बात कि nitrogen belongs to period 2 और phosphorus belongs to period 3। सही है। याद रखना कि जो भी पीरियड 2 का एलिमेंट होता है ना, उसके पास ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं होती। डू नॉट एक्सिबिट ऑक्टेट एक्सपेंशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। सही है। जबकि पीरियड 3 के जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सब के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, वो सब ऑक्टेट एक्सपेंशन कर लेते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। सो नाइट्रोजन आउटर शेल कैन नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब उसके पास ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं होगी, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है, ओके। फिर वो कह रहे हैं नाइट्रोजन कैन नॉट हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। दैट्स स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिकॉज अगर मैं सिर्फ नाइट्रिक एसिड ले लूं तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। सही है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो कैन नॉट नहीं हो सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड देयरफॉर आंसर इज डी। जब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए और सेकंड गलत हो जाए तो 1 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ 1 का कॉम्बिनेशन है, इसलिए डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ओके। Okay, 32. When a sample of a gas is compressed at constant temperature from 1500 kilopascal to 6000 pascal, its volume changes from 76 cm cube to 25.0 cm cube. Okay. Under such extreme pressure, if you compress the gas, volume is no longer negligible. Oops, negligible. Because gas liquefies. तो इसका मतलब अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट हो जाएगा। So gas will deviate from its
ideal behavior. The first statement is right. Second statement, the gas partially liquefies, absolutely incorrect. जब आप इतना प्रेशर देंगे तो गैस का जो वॉल्यूम है वो कंप्लीटली लिक्विफाई हो जाएगा, पार्शली नहीं होगा कभी, ठीक है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड देयरफॉर राइट आंसर अगेन इज डी. क्वेश्चन नंबर 33, which of these statements are always correct? Always, ठीक है, always कह रहे हैं. स्टेटमेंट रीड करते हैं. The sum of the oxidation number of all the atoms in a compound is 0. ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल की 0 आ रही होती है, ठीक है. ये बात बिल्कुल ठीक है. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन अ सॉल्ट इज पॉजिटिव, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सोडियम +1 होता है हमेशा. नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन अ कंपाउंड इज नेगेटिव. ऑलवेज नहीं है ये बात. उसकी वजह ये है कि क्लोरीन के बहुत सारे कंपाउंड्स मैं आपको बता देता हूँ. मिसाल के तौर पे NaCl में -1 होता है क्लोरीन, लेकिन NaClO में +1 होता है, जबकि NaClO3 में क्लोरीन +5 होता है. दैट शोज कि हमेशा ऐसा नहीं होगा. इसका मतलब यह आंसर गलत हो गया, एंड देयरफॉर बी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर यू एंड फॉर मी. Okay. Next, 34. Sulfur dioxide and oxygen reacts in a gas phase. Delta H की value negative है. Which statement are correct? Increasing the pressure increases the equilibrium yield of sulfur trioxide. बिल्कुल सही बात है. That's correct. इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास टोटल 3 moles हैं, यहाँ पर आपके पास 2 moles हैं. So if you increase the pressure, equilibrium favors towards right hand side because of less number of moles, and thus yield of sulfur trioxide increases. Next, increasing the temperature lowers the value of equilibrium constant Kp. आप जानते हैं कि एक exothermic reaction है, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू ली शटर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो प्रोडक्ट कम, रिएक्टेंट ज्यादा. जब प्रोडक्ट कम, रिएक्टेंट ज्यादा, तो जब रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो Kp की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? लोअर. तो इसका मतलब ये भी बात बिल्कुल ठीक है. ओके, क्योंकि जब रिएक्टेंट ज्यादा हो, प्रोडक्ट कम हो, तो Kp Kc की वैल्यू कम ही होती है. यही पढ़ा है हमने आपको. नेक्स्ट, the presence of vanadium 5 oxide catalyst increases the equilibrium yield of sulfur dioxide. Guys, this is the catalyst, and this catalyst has no effect on equilibrium yield, so it is going to be incorrect, and therefore right answer is B. Okay. Next. Okay. 3 test tube X, Y, and Z each contain a small amount of water. Small amount of NaCl is added to test tube X. Okay. न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा NaCl वाटर में ऐड होने पे, और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी pH 7 होती है, ये मैंने आपको बताया. ठीक है. Then small amount of SiCl4 is added to test tube Y. Obviously एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और इसकी pH की रेंज मैंने आपको बताई थी 2 to 3. Then small amount of AlCl3 is added to test tube Z. So ये भी एसिडिक सॉल्यूशन देगा हाइड्रोलिसिस की वजह से, और इसकी भी pH क्या थी? 2 to 3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन मिलता है दोनों से. Let's talk about, after a short time 2 drops of universal indicator solution are added to each test tube. Which observations are made? The indicator added test tube X stays green. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो ग्रीन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा कलर. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. सेकंड, the indicator added to test tube Y turns red. ये बात भी बिल्कुल सही है. इंडिकेट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसका कलर रेड हो जाता है. सही है, तो ये बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट, the indicator added to test tube Z turns red. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों के दोनों एसिडिक सॉल्यूशन है, तो दोनों एसिडिक सॉल्यूशन में रेड होगा. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी Na. Sodium chloride, sodium iodide reacts with concentrated sulfuric acid. Which statement are correct? भाई
जब आप सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनता है और साथ में स्टीमी या मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl बनते हैं। इसका मतलब इन दिस रिएक्शन concentrated H2SO4 is acting as an acid only. उसने क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन में कन्वर्ट नहीं किया। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया कि सोडियम क्लोराइड इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सोडियम आयोडाइड भी है, तो भाई सोडियम आयोडाइड से रिलेटेड बात कर लेते हैं। यार ये है सोडियम आयोडाइड, अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये सॉल्ट बनाएगा, सोडियम हाइड्रोजन वेट 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 सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन आयोडाइड का। और आप जानते हैं ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड उसी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट करेगा, खुद रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 H2S में, और यहां से आ जाएगा वाटर। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है आयोडाइड को इनटू आयोडीन। तो थर्ड स्टेटमेंट ठीक हो गया। लेट्स सपोज नेक्स्ट देखते हैं, नो कलर चेंज इज सीन व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्टीमी फ्यूम्स होते हैं, मिस्टी फ्यूम्स होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। ये भी सही है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। क्वेश्चन नंबर 37, which compounds can be obtained from butene in a single reaction? तो भाई ये आपका ब्यूटूइन है, सही है। और सबसे पहले आप अगर इसको कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये डायोल बनाएगा, CH3 CHOH CHOH एंड देन CH3। तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। दूसरा, अगर मैं इस कंपाउंड को स्टीम से रिएक्शन करवा दूं तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट ये बनेगी, CH3 CHOH CH2 CH3, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, एक OH यहाँ ऐड हुआ, ये आ गया। बाकी ये दोनों तो बेटा सेम ही थे ना, इनमें तो कोई चेंजेस नहीं की। ये भी ठीक है, राइट। लास्ट वाला देखते हैं, अगर मैं इस कंपाउंड को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन करवाऊं तो आप सब जानते हैं कि ये CH है, ये भी CH है, ये दोनों CH कन्वर्ट हो जाएंगे 2 moles ऑफ इथेनोइक एसिड में। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। तो ये थर्ड भी सही है, इसका मतलब A is going to be the right answer. Okay. Next, question number 38. Which statement helps to explain the mechanism of the reaction between 1-chloropropane and ammonia? पहली बात, ये आपका अल्काइल हाइड है, oops, it is your alkyl halide and it is your nucleophile. So all alkyl halide undergoes SN reaction. All alkyl halides undergoes SN reaction. एलिमिनेशन भी करते हैं बट मेनली SN होता है। ठीक है, चलें पढ़ते हैं वन बाय वन। 1-chloropropane has a slight negative chlorine. बिल्कुल सही बात है, chlorine is more electronegative element, slight negative होगा, that forms hydrogen bonds with a slight positive hydrogen atom in ammonia. याद रखिएगा, examiner is talking about mechanism. ये जो अमोनिया
का हाइड्रोजन एटम है पार्शियल पॉजिटिव, वो क्लोरीन के पार्शियल नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये स्टेटमेंट है तो ठीक, बट दिस स्टेटमेंट हैज नथिंग टू डू विद द मैकेनिज्म, व्हिच इज व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, इट इज राइट स्टेटमेंट है, बट मैकेनिज्म को इंडिकेट नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए इनकरेक्ट है। 1-chloropropene is a polar compound with a slight positive carbon atom। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 1-chloropropene बना लूं आपके लिए CH2Cl, तो ये क्लोरीन स्लाइड नेगेटिव और ये कार्बन स्लाइड पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया। दैट्स ट्रू। अगर मैंने इस अमोनिया को लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल बोला था, तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, एंड राइट आंसर इज ऑब्वियसली सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, which compound reacts with alkaline aqueous iodine to give a pale yellow precipitate of triiodoform। यार alkaline aqueous iodine ना पॉजिटिव टेस्ट उस वक्त देता है जब आपके पास CH3CHOH ग्रुप हो या फिर CH3CO ग्रुप एक साथ लिखा हो। अगर ये ग्रुप है एक साथ लिखे में तो आयोडोफॉर्म का टेस्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटानॉन की। तो ब्यूटानॉन का स्ट्रक्चर ये है CH3CO CH2 CH3। इथेनॉल का स्ट्रक्चर ये है CH3COH, और प्रोपेन टूओल का स्ट्रक्चर ये है CH3CHOH CH3। अब आप नोट कीजिएगा, आपके पास CH3CO ग्रुप मौजूद है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म का टेस्ट देगा। सिमिलरली इसके पास भी CH3CO ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है, ये भी आयोडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव देगा। नाउ लाइक CH3CHOH ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है, ये भी आयोडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव देगा। दैट मींस A is going to be the right answer. Okay, next, propanoic acid occurs naturally as a result of the bacterial fermentation of milk, and it's partly responsible for the flavor of Swiss cheese. Which starting material can be used to produce propanoic acid? Okay, तो सबसे पहला काम कर लेते हैं CH3CH2CH2OH। आप जानते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगा तो CH2OH will turn to COH। सही, यानी ये पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो गया इस COH, तो प्रोपेनिक एसिड बना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड देखो, CH3CH2CHO, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूं तो ये जो तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इस तरह से तुम्हारे पास प्रोपेनिक एसिड बन जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि तुमने प्रोपेनिक एसिड बना लिया। नेक्स्ट इज नाइट्राइल CH3CH2CN। अगर आपको याद हो, अगर हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर दें अंडर रिफ्लक्स कंडीशन, तो ये जो CN है ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में, और इस तरह से ये भी प्रोपेनिक एसिड दे रहा है। तो इन तीनों ने प्रोपेनिक एसिड दिया, that means A is going to be the right answer. That's the end of this paper, guys. Hope you get the point. Thank you very much.